کہ کیا مسائل ہیں، کیا ان کی داستان ہے، انہیں کیا پریشانیوں کا بارے میں آواز اٹھاتی نہیں، اپنے حقوق کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے حقوق کیا ہے۔ وہ کیسے مجھ سے نا سگنیچر لیے ہیں، فرد نکلوائی ہے اور ساتھ میں رجسٹری بھی کروا لی۔ تو نے اپنے ہی پیسوں سے اپنی ہی پاکٹ سے وہ گھر بنایا۔ ان کے جو خاوند ہے، ان کے پراپرٹی کی قیمت کتنی تھی؟ تقریباً 40 لاکھ 40 لاکھ۔ رجوع کریں تو میں آج بھی تیار ہوں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ عذاب بھی دلوائی جائے اور دوبارہ کسی ہوا کے بیٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ یہ جی ناظرین، یہ وہ خاتون ہے جن کی داستان ہے، ہمیں تو نہیں پتا کیا داستان ہے، انہی کی زبانی سنیں گے کہ ان کے کیا مسائل ہیں، کیا ان کی داستان ہے، انہیں کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مشرف خان ہے۔ مشرف خان ہے۔ اچھا مشرف خان، ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ ظلم کے پیچھے کیا کہانی ہے، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ ہماری عدلیہ آزاد ہے، CCPO لاہور صاحب ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، جو نگران وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، بے شمار ادارے آپ کی آواز سن رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے۔ کیا ظلم کی انتہا کی ہے؟ کیا آپ کو کہتے رہے ہیں؟ کیا ذرا بتائیے گا ہمیں۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے میرے ساتھ غلط قسم کی تعلقات رکھنے کی کوشش کی جو نامناسب تھے، جو شرع محمدی میں آتے ہی نہیں۔ نکاح کا مطلب نکاح ہے، اور یہ غلط طریقے سے جو بھی ان کو اچھا لگتا تھا، یہ اس طریقے سے مجھے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس بات کو نہیں رد کیا اور مجھے ذلیل و خوار کرتے رہے۔ اور اگر میں اس بارے میں آواز اٹھاتی تھی تو میرے ساتھ ان کی بربریت بڑھ جاتی تھی، مجھے مارتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گی تو تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، تمہارے بچے کو قتل کروا دوں گا، کہ میرے اتنے سورسز ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کچھ عورتیں یہ ظلم برداشت کر کے چپ رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں پڑھی لکھی ہوں، اتنا مجھے شعور ہے کہ میں اپنے حق کے لیے بات کر سکتی ہوں۔ تو یہ سوچ کے میں نے ان کے خلاف رپورٹ کروائی کون سے تھانہ میں؟ تھانہ میں IG کے آفس میں نے کروائی تھی۔ درخواست مارک کروائی تھی؟ جی جی کوئی عمل درآمد ہوا IG صاحب کے حوالے سے؟ جی جی ہوا۔ انہوں نے پھر FIR کٹوا دی۔ میں نے انہیں میری بات سمجھ آئی۔ جی ASI صاحب کو جو وہاں پہ تھے، انہوں نے میرا بات سنی، انہیں میں نے سب کچھ بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فوری FIR کٹوا دی۔ کون سے تھانے میں بند ہیں؟ ابھی وہ پہلے تو وہ مغل پورہ میں تھے، یہاں سے وہ مزنگ تھانہ میں چلے گئے ہیں۔ مزنگ تھانہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ جو IG صاحب نے درخواست جو ہے مارک کی ہے، یہ درخواست جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، IG صاحب نے عمل درآمد کروا دیا۔ جی آپ مطمئن ہیں IG صاحب سے؟ جی میں مطمئن ہوں، انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے انہوں نے۔ ابھی آپ کے جو خاوند ہے، جو آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے، جبر بھی کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جو کہ نکاح میں جائز نہیں ہے، جی آپ کے منع کرنے پر ابھی ان کے خلاف آپ نے FIR درج کروا دی۔ جی میں نے وہ کام کیا جو خواتین نہیں کرتی اور ظلم ستم سہ کے اپنے گھر میں رہتی ہیں، لیکن میں ایک عورتوں کے لیے آئیڈیل بنی ہوں، میں باہر نکلی ہوں، میں نے بتایا ہے کہ آپ اس طرح اپنے اوپر ظلم نہ سہو۔ مطلب جو عورتیں اپنی آواز بلند نہیں کرتی ہیں، چپ رہ جاتی ہیں، ظلم ان کے اوپر ہوتا رہتا ہے جی ہوتا رہتا ہے، ان عورتوں کا آپ کو میسیج ہے کہ خدارا آپ نے چپ نہیں کرنا، یہ بھی تو ایک یہ خاتون ہی ہے نا۔ کیا کہنا چاہیں گی جو عورتیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں چپ کر کے، ظلم و ستم جو ہے وہ سہتی ہیں؟ دراصل وہ ان کے ساتھ ظلم ہو نہیں رہا ہوتا، وہ خود کروا رہی ہوتی ہیں، اچھا، کیونکہ وہ اس بارے میں آواز اٹھاتی نہیں، اپنے حقوق کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے حقوق کیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے بارے میں جانیں اور بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن خواتین جو ہے نا اس بات کو سیریس بالکل نہیں لیتی اور ظلم ستم سہ کے مار کھا کے پھر وہیں پہ پڑی رہتی ہیں۔ دیکھیں جی، خاتون جو ہوتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں اپنی جو ہے عزت کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا بیک گراؤنڈ کا تھوڑا خیال ہوتا ہے، تو اس وجہ کر کے بھی جو ہے نا خواتین جو ہے پھنس جاتی ہیں۔
तो आपने तो बड़ी बहादुरी का सामना किया। अभी आपका ये जो है, आपके खावंद का नाम क्या है? उनका नाम मुनव्वर अली डोगर। मुनव्वर अली डोगर। ये जो मुनव्वर अली डोगर हैं, ये क्या करते हैं? ये वापडा से रिटायर्ड है अभी। वापडा से रिटायर्ड हैं। जी। ठीक हो गया है, वापडा से रिटायर्ड हैं। और अभी जो है ये कौन से थाने में, अभी मौजूदा कौन से थाने में बंद है? मुजंग थाना में। मुजंग थाना में आपने बंद करवा दिया उसे। जी। आपकी एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। जी हाँ। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा मुशर्रफ खान, कि आपका क्या मुतालबा है और आप क्या चाह रही हैं? मैं एक तो ये कि मेरा एक घर था जो अभी इसका केस लगा हुआ था, जी। लेकिन इसने इसी केस के दौरान वो घर सेल करवा दिया अपने वकील के साथ मिलके। अच्छा। ठीक है, उसमें ये हुआ कि अब दूसरी मुखालिफ पार्टी मुझे जगह-जगह घसीट रही है, मुझे जगह-जगह थाने में बुलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई जा रही है। ये इनकी मिली-भगत से हुआ है। ये क्योंकि वकील साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इनके कहने पे ही ये सब साज़िश जो मेरे बारे में रची जा रही है, वो इनके कहने पे ही हुआ है सब कुछ। ये जो मुनव्वर डोगर साहब है, ये वापडा से रिटायर्ड हैं। जी। इन्होंने मौजूदा जो अभी घर इन्होंने बेचा है, वो घर आपका था या उनका था? जी, सर वो घर मेरा ही था, अच्छा। लेकिन मुझे ना तो कोई पैसे मिले हैं वापस कि कितने का सेल हुआ, ना मुझे आज तक उसकी खैर खबर है कि वो सेल भी हुआ है या नहीं हुआ। और ना ही इन्होंने धोखे से मुझसे ना सिग्नेचर लिए हैं, फ़र्द निकलवाई है और साथ में रजिस्ट्री भी करवा ली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसका कितने का सेल हुआ और उसमें कितने पैसे मुझे दिए हैं, ये भी नहीं है। कुछ नहीं दिया मुझे। जी, नाज़रीन देखा, ये है वो मुनव्वर डोगर, जो कि वापडा के मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं। ये खातून का घर था और ये खातून ने अपने ही पैसों से, अपनी ही पॉकेट से वो घर बनाया। इनके जो खावंद है, इनके खावंद ने मुखालिफ पार्टी के साथ मिल के ये खातून का घर सेल आउट कर दिया। सेल आउट तो कर दिया, लेकिन जो आपकी जो आपका जीवन साथी है, जिस बंदी ने आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है और गुजार रही है, क्या उसका कोई हक नहीं है? क्या उसका कोई हक नहीं कि वो अपना मशवरा ले ले या घर बेच दे? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी? तकरीबन 40 लाख। 40 लाख थी। जी। जो आपके खामन ने जब बेची, जब आपके साइन उन्होंने करवाए, आप होश में थी? जी हाँ, मुझे फ़ोन पे ये डायरेक्शन दे रहे थे कि कर दो, जाओ जाके पहले फ़र्द मुझे बुलाया गया है फ़र्द के बहाने, कि अच्छा। वहाँ जाके मैं फ़र्द ले लूँ। मैं फ़र्द लेने गई हूँ वकील साहब के साथ। तो जी। साथ ही उन्होंने कहा कि कैंट कचहरी चलें, वहाँ पे हमने घर सेल कर दिया। डोगर साहब कह रहे हैं कि घर सेल करें और पैसे ले लें। तो मैंने डोगर साहब को फ़ोन करके उसी टाइम कहा कि घर सेल करना है, आपने मुझे बताया था कि नहीं? तो कह रहे हैं, "हाँ, हाँ, ठीक है, वकील कह रहा है ना, तो घर सेल करना है।" तो मुझे तो यही पता था कि इन्होंने ना इसके पेपर मिचोर हैं, इसका केस हमने विन कर लिया है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तो अभी केस लगा हुआ है। ये तो सिर्फ़ एक साज़िश थी कि मेरे खिलाफ़, कि मेरे ऊपर एफआईआर करवाने की या मुझे फँसाने की, क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया कि चलो ये तो फँस जाएगी और मैं आसानी से इससे छुटकारा भी ले लूँगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि ऐसा अभी नहीं हुआ। उल्टे वो खुद फँस गए हैं। उल्टे वो खुद फँस गई है। जी नाज़रीन, ये है वो खातून जिसके साथ ज़्यादती भी हुई। कौन है इसका? देखिए, जब शादी हो जाती है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप, बहन-भाई इतनी बैकअप, इतनी सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि कुँवारी लड़की की, कुँवारी औरत की होती है। ठीक है? तो नाज़रीन देखें, कहने का मकसद यही है कि ये इनका जो केस है, इनके जो मामलात हैं मुशर्रफ खान के, ये लीगल हैं, एक नंबर हैं। जो है मुनव्वर डोगर, वो अंदर है, मुज़ंग थाने में हवालात के पीछे बंद है। ठीक है? इतना उन्होंने जुल्म जबर किया आपके ऊपर। वो चीज़ें मनवाने की कोशिश की जो कि एक निकाह में शामिल भी नहीं होती। ठीक है? लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत को सैल्यूट है कि आपने फिर भी उस दरिंदे के साथ ज़िंदगी गुज़ारी, कि आपने सोचा कि चलें, मैं एक शरीफ घरेलू औरत हूँ और चलें, मेरी बदनामी ना हो मेरे रिश्तेदारों में, ये वो, पर व्हाटएवर जो कुछ भी है। अब आपका क्या लाएअमल है? आप चाहती हैं कि उनको सज़ा मिले या उनके साथ आप दोबारा से फिर अच्छा रिश्ता कायम करना चाह रही हैं? जी देखें, अच्छा रिश्ता तो कायम हो सकता है, लेकिन इसमें उनका तावन मुझे चाहिए, वो जानवर ना बने, इंसान ही रहे और शरअ मोहम्मदी के अंदर जो कुछ भी है वो होना चाहिए। इससे हट के कुछ हदें नहीं। पार ना करें। जी, हदें बिल्कुल ना पार करें, जो अल्लाह पाक के हुक्म से लिखा गया है वैसा ही होना चाहिए। लेकिन वो उनको मैंने बहुत इस मामले में मना करती रही हूँ
उन्हें समझाती रही हूँ शरीयत के हवाले से, कुरान के हवाले से, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिल-आखिर मुझे फिर कदम ये उठाना पड़ा। उठाना पड़ा और आज मैं आपके सामने हूँ। वरना कोई शौक से इस तरह नहीं करता, जो मेरे साथ हुआ है, तो अल्लाह पाक किसी बहन-बेटी के साथ इस तरह ना करे। अल्लाह पाक किसी बहन बेटी के साथ इस तरह ना करे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बल्कि सारी बहनों को जो मेरी आवाज़ सुन रही हैं या जो मुझे देख रहे हैं, कि मैं डी7 न्यूज़ की शुक्रगुज़ार हूँ। वो उन्होंने मेरा जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत साथ दिया मेरे साथ। वो गए हैं एफआईआर कटवाने में, मेरी बहुत हेल्प की है और मेरी आवाज़ बने हैं उन्होंने, माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ डी7 की पूरी टीम के लिए। टीम मेरे लिए दुआएँ हैं और अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और ये हर किसी जो मज़लूम है, जो ज़ुल्म का शिकार है, उनकी आवाज़ बने और उनकी हेल्प करें। जो आमीन। खवातीन जो है आवाज़ बुलंद नहीं करती, घर में चुप करके बैठ जाती, उन्हें भी कोई मैसेज दें आप। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो इस तरह ख़ामोश ना बैठें, अपनी आवाज़ के लिए हलाल जो बात है, यानी कि जो बात लीगल बात है, लीगल राइट पे बात है। है, राइट पे है, वो अपने इस आवाज़ को बुलंद करें, उन्हें बताएँ कि हमारे ये राइट्स हैं, हम इससे बाहर नहीं हो सकते और इस तरह ज़ुल्म ज़्यादती बर्दाश्त ना करें और आएँ और अपने वारसों को, चले वारिस नहीं सुन रहे, लेकिन अभी दरवाज़े खुले हैं। बड़े-बड़े पुल अच्छे लोग हैं जी, जी, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, ये पुलिस वाले सारे बुरे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये बेशक। ख़वातीन की सुनते हैं, जो मेरे साथ हुआ मैं तो वही बता रही कि ख़वातीन की सुनते हैं, उन्हें वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आईजी ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं, जी। आप आईजी ऑफिस में जाएँ, जो भी आपके मुतालबात हैं, उधर जाके जी, अपनी उन्हें दरख्वास्त दें, बताइए, दरख़्वास्त दें, पूरी-पूरी जो कुछ आपकी भी है। सपोर्ट होगी। जी हाँ, बिल्कुल वो तावन करेंगे, मेरे साथ तो किया है, इंशाल्लाह इनके साथ भी तावन होगा। जी, देख लें जो ख़वातीन जो हैं घर में रह जाती हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती अपने हक़ के लिए, हमारा डी7 न्यूज़ आपके लिए हाज़िर है 24 घंटे। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हम तो वैसे भी अवाम के जो हैं, मज़लूम अवाम के नौकर हैं, ख़ादम हैं। हम आप ही की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने अपना चैनल लॉन्च किया है। जो है, हर अदारा देख रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आला काम को? मेरी हाथ जोड़ के आला काम से दरख़्वास्त है, मैं रो-रो के उनसे दरख़्वास्त करती हूँ कि इस बात पे वो तवज्जो दें कि मैं एक लाचार मजबूर औरत हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीटिंग करके मेरा घर ले लिया, सेल कर दिया और मुझे मुख्तलिफ मुकद्दमात में फँसा दिया है। क्योंकि वो घर अभी इसका हमने विन नहीं किया था, केस विन ही नहीं हुआ और इन्होंने पहले ही वो घर सेल करके मेरे साइन अंगूठे लगवा के मुझे फँसा दिया है। मुझे मुख्तलिफ केस में इन्वॉल्व कर दिया है। मैं एक शरीफ औरत हूँ, मुझे इसके शर से बचाया जाए और मुझे इंसाफ़ दिलाया जाए कि मैं ऐसी नहीं हूँ जो जिस तरह ये मुझे शो कर रहे हैं। मुझे कभी किसी थाने से, कभी किसी थाने से आवाज़ आती है, मुझे जाना पड़ता है और इस तरह की ये हरकतें इनको ज़ेब नहीं देती। मैं अभी भी इनके साथ, अपने मियाँ के साथ गुज़ारा करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि वो मुझे शरअ मोहम्मदी के अंदर, इख़लाक़ के दायरे के अंदर रह के मेरे साथ रुजू करें, तो मैं आज भी तैयार हूँ उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। क्योंकि निकाह करना कोई आसान नहीं है। इन्होंने निकाह का मज़ाक बनाया है, इन्होंने बहुत गंदा किया है ये सब कुछ। इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए और उम्मीद करता हूँ कि इनकी आवाज़ जो है वो हमारे अदारे, हमारे अदलिया, हमारी आईजी पंजाब, सीसीपीओ साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, आल जो है हमारे अदारे सुन रहे हैं। इनके ऊपर जो है इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए और अमल दरामद करवाया जाए। ऐसी जो अपना ब्लैक मेलर जो है, इन्हें जो है दर्दनाक सज़ा भी दिलवाई जाए और दोबारा किसी हवा के बेटी के साथ जुल्म ना हो। ये अपना जाते जाते नाज़रीन कैमरामैन शहजाद के साथ नाना नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलाम।